This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مخصوص کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ، سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ ہیں ہمارے دین کی پہچان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت و نعت، اور دوسرے حصے میں ممتاز عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہم العالی اور عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے حصے میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عزیزم قاری سعید، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور فخر و ناز مدینۃ الاولیاء، ہمارے خطے کے معروف نعت خواں جناب ملک بختیار حسین اسیمی کے صاحبزادے عزیزم محمد نعمان بختیار سعیدی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نعمان، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ میں قاری محمد سعید کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. اور ناظرین، نعت کی دعوت سے قبل اپنا ایک شعر تمہید کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ نعت کب کار ہنر ہے صاحب. صحیح، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب. نعت معراج بشر ہے صاحب. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزیزہ محمد نعمان بختیار سعیدی کو حاصل ہوا جاتی ہے. جی بیٹا شروع کیجیے. اپنی بخشش کی کوئی راہ نکالی جائے، اپنی بخشش کی کوئی راہ نکالی جائے، محفل ذکر نبی گھر میں سجا لی جائے، روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے، روح میں ان کی محبت کا شبستان سجے، ان کی یادوں سے شب ہجر اجالی جائے، یہ کسی تاجور دنیا کا دربار نہیں، یہ کسی تاجور دنیا کا دربار نہیں، کیسے منگتا
در سرکار سے خالی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ممکن ہے دعا باب کرم سے لوٹے، کیسے ممکن ہے دعا باب کرم سے لوٹے، پہلے اللہ کو گر نعت سنا لی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے اللہ کو گر نعت سنا لی جائے، ہر گھڑی پیش نظر ان کا ہو اسوا ساجد، ہر گھڑی پیش نظر ان کا ہو اسوا ساجد، دل میں الفت شہوالا کی سنبھالی جائے، سبحان اللہ۔ دل میں الفت شہوالا کی سنبھالی جائے، اپنی بخش۔ کیا خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سما باندھ دیا بھائی، واہ 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 واہ۔ اور ناظرین یہاں یہ بات بھی میں کرتا چلوں کہ عزیزم نعمان بختیار سعیدی کا بچپن بھی ہم نے دیکھا، پھر ماشاءاللہ یہ بتدریج ہمارے سامنے جوان ہوئے، اپنے والد گرامی سے تربیت حاصل کرتے رہے، اور ماشاءاللہ اب خوبصورت لب و لہجے کے نعت خواں ہیں، پورے پاکستان میں جانے جاتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ اپنا سفر بڑے آسان طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل مزید عزتیں، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ اور ناظرین منقبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قبل صرف 2 اشعار حضرت پیر سید نصیر احمد نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذرا سید سماعت کیجیے گا کہ جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، اور اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں میں نام عائشہ۔ سو منقبت کے لیے عزیزم محمد نعمان بختیار سعیدی۔ ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، جس کی عصمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی عصمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کے
ہمیشہ ہے دامن ایام پر، جس کے فرزندوں نے سیلے بے قرار کے روپ میں، جس کے فرزندوں نے سیلے بے قرار کے روپ میں اپنی سطوت کے علم لہرائے روم و شام پر، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہم گناہگاروں کا شورش کون ہے ان کے سوا، ہم گناہگاروں کا شورش کون ہے ان کے سوا، خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر، خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر، ہوں میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح نعمان بختیار سعیدی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے نعت و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی میں انشاءاللہ جناب حافظ محمد فاروق خان سعیدی اور ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری ام المومنین حضرت سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی،
लड़की की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया
वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का मौजू उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और फ़ज़ाइल। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मज़हबी स्कॉलर, जमात अहले सुन्नत पंजाब के नाज़िम आला, मेंबर सूबाई अमन कमेटी पंजाब, ख़तीब जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान, हमारा फ़ख्र नाज जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी। हुज़ूर आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान तर्जुमान दरगाह आलिया हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, सेक्रेटरी जनरल उलमा व मशाइख पाकिस्तान। अनगिनत प्रोग्रामों की नज़ामत और नक़ाबत का एज़ाज़ आपको हासिल। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ खान कादरी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब डॉक्टर सिद्दीक़ खान कादरी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हसब व नसब है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फसल, जानशीन रसूल सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहिबजादी हैं। आपकी सबसे बड़ी फजीलत तो उम्मुल मोमिनीन होना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपकी 4 पुश्तें सहाबी हैं और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आयशा, सिद्दीक़ा और हुमैरा आपके अलकाब हैं। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिनके बारे में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जन्नत की हूर को देखना हो वो उम्मे रुमान को देख ले। ये ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान आली शान है। और हज़रत उम्मे रुमान को ये फजीलत भी हासिल है कि जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उनकी lahad में उतरे और अपने हाथों से उनको सपुर्द खाक किया। ये बहुत बड़ी फजीलत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो उम्मुल मोमिनीन के वालिद गिरामी हैं, उनको ये एज़ाज़ हासिल है अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, अंबिया और रसूल के बाद सारी दुनिया में सबसे अफजल हैं, इमाम सहाबा हैं और उन्हीं को जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एज़ाज़ हासिल है। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ज़ाती महासिन, औसाफ़ व कमालात और फ़ज़ाइल में भी अपनी एक मुनफरिद शान की हामिल हैं, जिनका हम तज़करा करेंगे। तो आपके वालिदैन ने भी हिजरत फरमाई, उम्मुल मोमिनीन ने खुद हिजरत फरमाई। आपकी बड़ी बहन हज़रत अस्मा जो आपसे 10 साल बड़ी हैं, उन्होंने भी हिजरत फरमाई और हिजरत के मौका पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उम्मे रुमान और ख़ुद हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सफ़र में शरीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबी हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब, मेरा सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने ख्वाब में देखा कि आपको एक तोहफ़ा अता किया गया, तो इसकी तफसील जानना चाहूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। राजा साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। वो जो तोहफ़ा ख्वाब में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया गया, रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे सब्ज़ रेशमी कपड़े में, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं, सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा कायनात महबूब खुदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा तेरी तस्वीर सब्ज़ रेशमी कपड़े में मेरे पास लाते रहे और अर्ज़ करते रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा हैं, अल्लाह ने इनका निकाह अर्श पर आपसे कर दिया है। ये आपकी खुसूसियात में शामिल है। मैं थोड़ा सा ज़रा अर्ज़ कर दूं कि कुरान करीम ने अज़वाज नबी को मोमिनों की माएँ फरमाया है, अल्लाह पाक ने। अच्छा, उम्महातुल मोमिनीन है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनों से उनकी जानों से ज़्यादा करीब हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज यानी बीवियां जो हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। मैं ये अल बयान तर्जुमे से सूरतुल अहज़ाब की मशहूर आयात आपके सामने पढ़ता हूँ। वक़रना, पहले देखिए, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, इरशाद बारी है, ए नबी की पाक बीवियों, तुम औरतों में से किसी की मिसल नहीं हो, यानी कोई भी औरत तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। यहाँ लफ्ज़ अहद है, का अहदिम मिनन निसा, कोई तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। आगे चलकर फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो, ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अहदे जाहिलियत की बेपर्दगी इख्तियार न करना। ये दरअसल उम्मत को खिताब है ना, ये उम्मत के लिए हिदायत है, यानी खिताब अज़वाज मुताहरात से और हिदायत उम्मत के लिए। आगे फरमाया, वाक़िमना सलाता, अब मैं पूरी आयत पढ़ के तर्जुमा करता हूँ। वाक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा। ज़रा गौर फरमाइए, अल बयान तर्जुमा। और नमाज पढ़ती और ज़कात देती रहो, अज़वाज नबी से खिताब है, नमाज पढ़ती और ज़कात देती रहो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो, और अल्लाह यही इरादा फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब, अल्लाह यही इरादा फरमाता है कि ए रसूल के घर वालों, तुम में से हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें अच्छी तरह पाक करके खूब पाकीज़ा कर दे। आगे फरमाया, और याद करती रहो, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, याद करती रहो जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत की तिलावत की जाती है। इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, अल्लाह हर बारीकी जानने वाला, अच्छी तरह खबरदार है। ये आयत तत्हीर अज़वाज मुताहरात इसकी पहली मिसदाक और मुखातब है। और हमारा ईमान है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियाँ, बिलखुसूस सैयदा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदना बाब मदीनतुल इल्म अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, और शहजादगाने वाला तबार सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन, ये शहीदैन सईदैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये तमाम अहले बैत में शामिल हैं। और अल्लाह के नबी ने इनको अहले बैत में शामिल फरमाकर अपनी चादर तले देकर ऐलान कर दिया कि मौला ये भी मेरे अहले बैत हैं। कुरान करीम ने चूँकि
आयत ततहीर नाजिल फरमाई तो अज़वाज मुताहरात इसीलिए कहा जाता है मुताहरात कि वो वारिसे आयत ततहीर है। अब सवाल ये है कि सरकार की सबसे पहली ज़ौजा इस्लाम की खातून अव्वल, जिनको अहद जाहिलियत में भी ताहिरा कहा जाता था, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो अज़वाज रसूल में उनका बड़ा मकाम है। पहली ज़ौजा हैं और उम्र मुबारक 40 बरस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 25 बरस के नौजवान हैं और सरकार कंवारे हैं, और सैयदा खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा वो बेवा हैं और 2 बार बेवा हुई हैं। लेकिन आका को इतनी मोहब्बत थी कि जब तक सैयदा खदीजा ताहिरा हयात रहीं आपने दूसरा अक्द नहीं फरमाया उनकी मौजूदगी में। फिर उनका विसाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, गम का साल। सैयदा खदीजा के विसाल के बाद सैयदा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से अक्द फरमाया और फिर सिद्दीक़ा कुबरा सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा से अक्द फरमाया। सिद्दीक़ा हैं, बिनते सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। दूसरी बात यह है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती हैं, ये शायद आपके इम्तियाज़ात में आप सवाल फरमाएं तो मैं अर्ज़ कर सकूँगा, लेकिन ये बात कि मैं वो वाहिद खुशकिस्मत ज़ौजा रसूल हूँ कि जो कवारी सरकार के निकाह में आई। बाकी अज़वाज या बेवा थीं या एक आध काफिर मुशरिक शौहर से तलाक लेकर आका के अक़्द में दाखिल हुई। ये वाहिद कंवारी खातून हैं जो आका के अक़्द में आईं और आका को फिर सबसे ज़्यादा इनसे मोहब्बत है। अज़वाज मुताहरात तमाम हमारी माएँ हैं, लेकिन जनाब खदीजा ताहिरा का एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर और इस्लाम पर एहसान है सैयदा खदीजा पाक का कि इस्लाम पर माल खर्च किया, दौलत निछावर की और आका की हर एतबार से दिलजोई और दिलदारी और गमगुसारी फरमाती रहीं और आका मुश्किल हालात में साथ दिया, आका याद रखते थे। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने उम्मत को इल्म दिया, फिक्र दी, सरकार की सीरत व किरदार, आपकी निशस्त व बर्खास्त, आपकी ज़ात बाबरकत से मुताल्लिक जो भी अहवाल व वक़ाए हैं वो उम्मत तक पहुँचाए। और 2210 अहादीस की राविया है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। 2210 अहादीस नबविया की राविया हैं उम्मुल मोमिनीन, और आपसे रवायत करने वालों में बड़े बड़े अजिल्ला अकाबिर साहबा हैं। अभी डॉक्टर साहब ने उम्मुल मोमिनीन की बहन का जिक्र किया, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर। ये इस्लाम की बड़ी अजीम खातून है कि जिनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कुर्बानी दी और उनकी लाश को उनके जसद मुबारक को जालिम हज्जाज ने सूली पर लटकाया और कई दिन वो जसद अक़दस उम्मुल मोमिनीन के भांजे अबू बकर सिद्दीक के नवासे हज़रत ज़ुबैर के बेटे रज़ियल्लाहु अन्हु जो सरकार के सहाबी हैं और अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं और आका के करीब तरीन अजीज़ हैं, उनके बेटे को तख्तेदार पे लटकाया और उनकी वालदा को फिर बुलाकर कहा, उम्र 100 साल के करीब है हज़रत अस्मा की, जिस्म आपका झुका हुआ है, कमर नातवा है, कमर झुकी हुई है, और वो जालिम कहता है कि आओ इसको लाओ और अपने बेटे की ये हालत देखे कि इसने बगावत की थी हमारे साथ, उसकी हालत देखे। अब 100 साल की मुअम्मर खातून और कमर झुकी हुई, बीनाई कमज़ोर, लाठी टेकती हुई आई और अपने बेटे की जब लाश को देखा तो वो जुमला कहा जिसका तारीख़ में जवाब नहीं है, बजाए हाय वाय नाला व शैमन गिरिया व बुका, आहुजारी के बजाय तारीख़ी जुमले कहे जो जुल्म व सितम की हुकूमत पर
थप्पड़ रसीद कर गए। फरमाया अभी इस शाहसवार के घोड़े से उतरने का वक्त नहीं आया। और दूसरा जुमला कहा, क्या इस खतीब के अभी मिंबर से उतरने का वक्त नहीं आया? ये खानवादा सिद्दीक अकबर का एजाज और इनफरादियत है रदियल्लाहु अन्हु मजमईन के बाप सिद्दीक अकबर, बेटी उम्मुल मोमिनीन, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 पुश्तें सहाबी हैं, और इस एजाज में 1,24,000 सहाबा में कोई आपका हमसर बराबर नहीं है कि जिसकी 4 पुश्तें सहाबी हों। खुद सहाबी, बाप सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी, और बेटियां सहाबियात, और एक बेटी उम्मुल मोमिनीन, दामाद सहाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, अभी जिस जुल्म व सितम का जिक्र हज़रत अल्लामा हाफिज़ फ़ारूक ख़ान सईदी फरमा रहे थे, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अहद में तेरे जुल्म क्या न हुआ, अहद में तेरे जुल्म क्या न हुआ, खैर गुजरी के तू खुदा न हुआ। अल्लाह। नाज़रीन, वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, और वक्फ़े से वापसी के बाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ ख़ान क़ादरी साहब से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ाती औसाफ़ व कमालात के बारे में पूछेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। फन को भुला दो, मचती है हलचल, मीठे मीठे मचती है हलचल, हलचल, दिल बोले वो बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब
दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं सवाल करने जा रहा हूँ इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ ख़ान क़ादरी साहब से कि वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ाती औसाफ़ व कमालात और ख़िदमात के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। आपके ज़ाती महासिन और फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू से पहले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकबूल आम सलाम में से चंद अशार। बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, बिनते सिद्दीक तरकीब है, आराम जाने नबी, उस हरीम बरात पे लाखों सलाम, हरीम बरात पे लाखों सलाम, उस हरीम बरात पे लाखों सलाम, अहले इस्लाम की
مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، تو آپ کی پاک دامنی میں یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سورہ نور اور پر نور، سبحان اللہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، اور جان نثاران بدر و احد پر درود، سبحان اللہ، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق کے بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فضائل و کمالات اور محاسن و محامد میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر ساری امت میں سے تمام خواتین کے علم کو جمع کر دیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، فرمائیں۔ تو ان کے عالمہ، فاضلہ، فصیحہ، بلیغہ، فقیہہ، مفسرہ، محدثہ اور خطیبہ ہونے میں سبحان اللہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہم دینی مسائل کے حل کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اجلہ صحابہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دین کا 1/3 حصہ جو مسائل شریعت، احکام و فرامین شریعت ہم تک پہنچے ہیں، یہ صرف اور صرف ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ کے ذاتی محاسن میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ شاعرہ بھی ہیں، طب و حکمت کو بھی جانتی ہیں، اور آج کی جو ماڈرن سائنس ہے اس میں ہم ان صفات کے حامل کو فزیشین اور سرجن کہتے ہیں، تو الحمدللہ طب و حکمت کے اعتبار سے بھی آپ کو بہت کمال حاصل تھا، اور آپ نے جنگی قیدیوں کو جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی بھی فرمائی، ان کا علاج بھی فرمایا، جو مجاہدین زخمی ہوئے ان کی خدمت بھی سر انجام دی۔ اور اس اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک سفر میں حضرت اسما کا ہار گم ہوا، پھر کچھ دن گزر گئے، 2-3 دن پانی کم ہوا، تو تیمم کا جو حکم آیا وہ صرف آپ کی وجہ سے آیا۔ تو یہ صرف ایک ایسا واقعہ ہونا تھا جس کی وجہ سے امت کو یہ تیمم کے مسائل نصیب ہوئے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں سیرت کا جلسہ ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات ہوں، وہاں پر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پوچھنے پر فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے فضائل پوچھنے والے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور اسی بات کو کہ کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن سارے کا سارا
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क हसना की तस्वीर है। इसीलिए हजरत अजीज हासिलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े शायर थे और जामिया अनवारुल उलूम में हजरत गजाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपने दौरे एहतमाम में खाज़िन मुकर्रर फरमाया था। वो इसका तर्जुमा यूं फरमाते हैं कि कुरान की तफसीर है सरकार का चेहरा, कुरान की तफसीर है सरकार का चेहरा और कुरान में सरकार का चेहरा नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जिसने मुजस्सम में कुरान को देखना हो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखे। और आप देखें, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना का जो पैकर है वो मक्का मुकर्रमा में अगर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत के बदौलत आपके उसवा हसना को सारी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दिया, तो फिर मदनी जिंदगी में काना खुलुकुहुल कुरान फरमाकर इतनी बारीक बीनी से सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खुल्क मुहम्मदी का जो मुशाहिदा फरमाया और उस मुशाहिदे को फिर उम्मत तक पहुंचाया। और इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कायनात में जो आला अखलाक हैं उनकी तकमील के लिए दुनिया में मबूस किया है। तो आप फसीहुल लिसान भी हैं, फसीहुल बयान भी हैं, हुस्न सीरत और हुस्न सूरत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत बड़ी अज़मत अता फरमाई। और खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे आयशा सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा गया तो आप फरमाती हैं कि औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा से सी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और ये हदीस पाक कि अली अल मुर्तज़ा के चेहरे को देखना भी इबादत है, ये भी हदीस हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। जिस तरह हजरत ने फरमाया, अल्लामा साहब ने 2210 अहादीस आपसे रिवायत शुदा हैं और कुरान मजीद ने आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, अहादीस में आपके फ़ज़ाइल बयान हुए। आप दिन को रोज़ादार होती थीं, रात को इबादत फरमाती थीं, रमज़ानुल मुबारक के अलावा दीगर महीनों में भी अक्सर रोज़े से होती थीं, सखावत में बेमिसाल थीं। हज़रत दुर्रा फरमाती हैं कि एक मरतबा आपके पास 1 लाख दिरहम आए, आपने उसी वक्त मुस्तहिक और गरीब खवातीन में तकसीम फरमा दिया और 1 दिरहम भी अपने पास नहीं रखा। और इसी तरीके से ज़ुहद व तकवा में, कनात में, इबादत व रियाजत में, फ़क़ाहत में, सखावत में, जूद व सखा में अपनी मिसाल आप हैं। हुज़ूर अल्लाह, एक सवाल ये है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत हमारे लिए मशअल राह है, तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाली मादर पिदर ख़वातीन जो हैं वो आखिर किस मंशूर पर अमल पैरा हैं? ये इस किस्म के नारे तो खिलाफ इस्लाम ही नहीं, खिलाफ इंसानियत भी हैं। यानी कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा इस किस्म के वाहियात और बेबुनियाद नारों की या इस किस्म के नज़रिए की इजाज़त नहीं देता। ये आपने बहुत बरवक्त सवाल फरमाया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर, और वहाँ बजाय सीरत खदीजा, सीरत आयशा, सीरत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की पैरवी के ये औरतें, और फिर ये कहना कि हमें निकाह के बंधन से आज़ाद कर दो माज़अल्लाह। और फिर एक ऐसी वाहियात बात है कि जिसको दोहराते हुए ज़ुबान लरसती, दिल कांपता और दिमाग थर्राता है कि वो बराह रास्त तंज़ है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा पर और महबूब खुदा पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम पर। बराह रास्त
तंज है, तबर्रा है उम्मुल मोमिनीन पर और पैगंबर खुदा पर कि वो उम्र के यानी तफावत को आड़ बनाकर और ये बात की गई है, और कोई उसका कोई पूछगछ नहीं हुई, कोई मुआवजा नहीं हुआ, कोई उस बात रियासत मदीना की बात रियासत मदीना की हो रही है, और रियासत मदीना में यानी पैगंबर इस्लाम और उसके अहले बैत की तौहीन हो रही है बरसरेआम। यहाँ सैयदा फातिमा पाक का जिक्र हो, उनकी वालिदात का जिक्र हो, फिर पता चले रियासत मदीना है, उस पर अमल हो। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो खुसूसियात हैं जरा मुख्तसर वो। जी बिल्कुल, वो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा पाक खुद फरमाती हैं कि कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिनमें मेरा कोई हरीफ नहीं है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज में भी कोई इस मामले में मेरा हमसर नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं कंवारी महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के निकाह में आई, मेरा निकाह अर्श पे अल्लाह ने किया पैगंबर पाक के साथ, और फिर यानी मैंने भी हिजरत की, मेरे वालिदैन भी हिजरत करने वालों में हैं दीन इस्लाम की खातिर। और फिर फरमाया कि मेरे सिवा पैगंबर अलैहिस्सलाम की किसी बीवी के बिस्तर पर पैगंबर पर वाह्य नाजिल नहीं हुई। मेरा एजाज़ और इख्तिसास देखें कि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम, महबूब खुदा और मैं एक ही बिस्तर पर बैठे हैं और वाह्य नाजिल हो रही है, कुरान उतर रहा है, और रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह अबू बकर की बेटी और आपकी ज़ौजा पर सलाम भेज रहा है। कुरान भी लाया हूँ, अल्लाह का कलाम भी लाया हूँ, और आपकी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के लिए अल्लाह का सलाम भी लाया हूँ। अच्छा, फिर और आप फरमाती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया तो वो जब विसाल फरमाया तो आका का सरे मुबारक मेरे जानू पे रखा हुआ था, और आका मेरे जानू पे आराम फरमाते, और जिस जगह आका का रोज़ा मुबारक है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होकर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं, सलातो सलाम के गुलहाए मोहब्बत निछावर करते हैं, वो हुजरा है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का कि यही इसी हुजरे में, यही हुजरा है जिसको गुंबद खजरा भी कहते हैं, इसी में रहमतुल्लिल आलमी रहते हैं। ये जो अर्श से अफजल, देखें ये मुत्तफक अलैह बात है, अहले ईमान में मुत्तफक बात अलैह बात है कि जहां आपका जसद मुबारक लग रहा है, सरकार का जसद मुबारक लग रहा है, वो जन्नत और ये बैतुल्ला और जन्नत नहीं, अर्श इलाही से भी अफजल है वो जगह, और वो हुजरा है उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा का, जहाँ सरकार आराम फरमा है। क्या मर्तबा और क्या मकाम है, और आका ने उनको क्या क्या एजाज़ात अता फरमाए, और तमाम अज़वाज से फरमा दिया था कि मैं सलूक बराबर का रखता हूँ, मैंने तुम्हारी हक तलफी नहीं की, लेकिन जहाँ दिल का मामला है उसमें आयशा से मेरा प्यार ज़्यादा है। मेरा जी चाहता है अगर आप इजाज़त दें तो हज़रत क़िबला पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के अशार उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हदिया मनकबत और सलाम। अल्लाह अल्लाह जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, बामे आयशा, अल्लाह अल्लाह जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमिना माहे तमामे। क्या बात है, हिलाल और माहे तमाम, है हिलाले आमिना माहे तमामे आयशा, दुख्तरे सिद्दीक़ अकबर ज़ौजाए शाहे उमम। सुभान अल्लाह। दुख्तरे सिद्दीक़ अकबर ज़ौजाए शाहे उमम, है दुगुना औज का हामिल मकामे आयशा। सुल से दी उनके तवस्सुत से हुआ हासिल हमें। वाह, दीन का तीसरा हिस्सा मैंने अभी अर्ज किया है। सुल से दी उनके तवस्सुत से हुआ हासिल हमें, ता अबद जारी रहेगा फैज़ आमे आयशा। नाम लेकर आयशा का रब ने भेजा था सलाम, सुभान अल्लाह। ज़ौफिशा है अर्श पर
पिंदील नाम आयशा। सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा जुज दौलत हुब्बे नबी। सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता खुदा जुज दौलत हुब्बे नबी। मिल नहीं सकते नबी बे एहतराम आयशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखना कल खुद पे उस आकाए उम्मत का करम, आज होकर देख तू दिल से गुलाम आयशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इसी तरह फरमाया उनकी इस्मत की हैं आयाते बराअत पहरेदार। वाह। सूरह अन्नूर तेगे बेनियाम आयशा। क्या कहने, क्या कहने। कब्र अतहर पर न दें क्यों हाजरी जिन्नो बशर। सुभान अल्लाह। कब्र अतहर पर न दें क्यों हाजरी जिन्नो बशर, जब उतरते हैं मलक बहरे सलाम आयशा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब उतरते हैं मलक पर, मलक, जब उतरते हैं मलक बहरे सलाम आयशा। वार कर सकता नहीं मुझ पर कभी तागूत शिरक, लौहे दिल पर सब्त है नक्शे दवा में आयशा। अपना अंदर साफ रखने के लिए हर मैल से सांस की तस्बीह पर लेता हूँ नाम आयशा। डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो जी, इत्तेफाक ऐसा है कि यही कलाम मैं पेश करना चाह रहा था। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि आपने पेश कर दिया, चलो एक शेर मैं पढ़ता हूँ, बाकी फिर आप। अब मैं सिर्फ इसका जो मक्ता है, मक्ता, हाँ, मैं सिर्फ वो पेश कर, सिर्फ एक शेर मैं पढ़ लूं फिर। अच्छा अच्छा। जब नकीरैन आएंगे, जब नकीरैन आएंगे कह दूंगा उनसे कब्र में, मुझसे कुछ मत पूछिए मैं हूँ गुलाम आयशा। अब आप इरशाद फरमाएं। वाह। ताकि आपकी हाजिरी भी बहुत खूब। जहन में लाकर तसव्वुर अजमते बू बकर का। वाह। जहन में लाकर तसव्वुर अजमते बू बकर का, एक नारा ए अली मस्तो बना में आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोबारा इरशाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अजमत है। वाह 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 वाह। एक नारा ए अली मस्तो बना में आयशा। वाह वाह। ये अहले बैत की पढ़ाई की तरह कि मैं इसमें गुम होकर, ये अहले बैत की वहदत और जगानगत का इजहार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि हमारी आपकी जो एक मोहब्बत है, मतलब उसका एक मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो चीज मैं पढ़ना चाहता हूँ माशाल्लाह आपने प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, तो मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुशखबरी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो बेल्ट है सराइकी बेल्ट जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं, उसमें ये हमारा मक्स न्यूज़, ये चैनल अखबार भी, ये एक इनफरादियत का हामिल है। और इसके लिए मैं मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ मोहम्मद अकमल वैस साहब को और आपको और उनकी पूरी टीम को, कि जो मुख्तलिफ ज़राए इबलाग व इजहार से दीन, अदब, शरीयत और इस्लाह मुआशरा का पैगाम पहुँचा रहे हैं। और ये इनके लिए ज़रिया नजात भी बनेगा, सरमाया आखिरत भी साबित होगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे भी गुजारिश करूँगा कोई मुख्तसर और जामे पैगाम। जी, सबसे पहला पैगाम तो यही है जो हमें हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अता फरमाया कि हया औरत का जेवर है। हया और ईमान लाज़िम व मलज़ूम है। अगर हया रुखसत हो जाए तो ईमान रुखसत हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारी मुसलमान जो ख़वातीन हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनको उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और आपके उसवा हसना पर अमल करना चाहिए। और दूसरा पैगाम हदिया तबरीक मक्स न्यूज़ के इंचार्ज और मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैस और मोहतरम राजा मोहम्मद कौसर सईदी साहब आपको और पूरे इदारे को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये प्रोग्राम नस्ल नौ की इस्लामी खतूत पर तरबियत के लिए इंशाअल्लाह तरबियत में संगमील साबित होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मसाई जमीला को मंजूर व मकबूल फरमाए और कबूल दवाम अता फरमाए।
हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ खान क़ादी साहब, आपका भी शुक्रिया। और हज़रत इजाज़त दीजिए मुझे कि मैं अज़ीज़ुद्दीन खाकी, कराची में हमारे बड़े नात शायर हैं, अच्छा उन्होंने एक मनक़बत सुबह मुझे भेजी, तो मैं उसके चंद अशार से इख्तिताम जी कि सरवर कौनैन का फैज़ान हज़रत आयशा, सरवर कौनैन का फैज़ान हज़रत आयशा हैं हमारे दीन की पहचान हज़रत आयशा। और इसका मक़सद देखिएगा कि आप उम्मुल मोमिनी हैं, आपका खाकी हूँ मैं। वाह, आप उम्मुल मोमिनी हैं, आपका खाकी हूँ मैं, आप पर कुर्बान मेरे दिल जान हज़रत आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.